اگر یہاں سارا کچھ ٹھیک ہے تو الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر یہاں سارا کچھ ٹھیک ہے، روز کبھی جرنلسٹ کو تنگ کرنا، کبھی ملازموں کو نکالنا، کبھی پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے بین کرنا، مجھے بتائیے اگر یہ سارا کچھ ٹھیک ہے پھر تو یہاں 8 لاکھ یا 10 لاکھ ہماری سیکورٹی فورسز، ان کو تو بارکوں میں ہونا چاہیے تھا۔ نیشنل ہائی وے پہ چلتے ہیں، آپ تو ایمبولینس کو روکتے ہیں، آپ سکول بچوں ان کی بسز کو روک ان کو سائڈ کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر یہاں سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دیتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر نیوز بیورو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ مختصراً بات کرنے کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اسپوکس پرسن روپ بٹ صاحب ہے۔ روپ بٹ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے، ریسنٹلی 4 اسٹیٹس میں الیکشن ہوئے، ان میں بی جے پی نے 3 اسٹیٹس جیت لیے۔ کیا لگتا ہے انڈین الائنس جو بنی ہے یا کہیں ان کا لوپ ہول ہے جو اسٹیٹ؟ دیکھیے، اس میں 5-6 چیزیں ایسی ہے کہ جن پہ بات کرنا بہت اہم بنتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح میڈیا ون سائیڈڈ ہوا ہے، کیا ریزن ہے جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے یہاں ایجنسیز ہے، چاہے ہم ای ڈی کی بات کریں، این آئی اے کی بات کریں، ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے تھا، وہ بھی ان کی ایما پہ کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اس سے انسٹیٹیوشنز تباہ ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا ملک جس کی ڈیموکریسی پوری دنیا میں مانی جاتی تھی، اس کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ بے شک بظاہر تو انہوں نے جیتا ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جنرل بات کرتے ہیں، یہ جو ہے ہم سب کی ہار ہے۔ ہم جتنے بھی جموں کشمیر کے لوگ نہیں بلکہ پورے ملک میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، ہم سب کی ہار ہے، کیونکہ ہماری انسٹیٹیوشنز کمزور ہو رہے ہیں۔ ہماری آپ دیکھیے ہر سطح پہ جو ہے، جو بھی کوئی الیکشن مینیفیسٹو ہوتا ہے، وہ مذہب کے نام پہ ہوتا ہے، وہ جس کو ہم یہ کہیں کہ جس کو اکانومی کی بات کریں، ہم اگر بات کریں جس کو یہ بار بار وکاس کی بات کرتے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف ہندو اور مسلمان کی بات ہو رہی ہے، مندر اور مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، اس سے ہم اپنے ملک کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اکانومی پہ بات ہوتی، ہیلتھ سیکٹر پہ بات ہوتی، سپریم سائنس پہ بات ہوتی، ایجوکیشن پہ بات ہوتی، فارن افیئرز پہ بات ہوتی۔ اس پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر ہم جو ہے ہار رہے ہیں۔ اس ہار کی وجہ کیا ہم مانیں، یہ جو انڈین الائنس ہے جس کا حصہ آپ بھی ہو، کہیں نہ کہیں ان کے جو ہوم ورک ہے وہ اس میں ویک تھی؟ دیکھیے، اس پہ جو ہے بات کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی میں نے آلریڈی آپ کو بولا کہ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ جس طرح ہمارا آج میڈیا بائس ہے، جس کو بار بار جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چاہے یہاں ای ڈی کی ہم بات کریں، ہم این آئی اے کی بات کریں، ہم یہاں دوسرے ایجنسیز کی بات کریں، جس طرح ان کا استعمال ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک بات ہے اور یہ لمحے فکریہ ہے۔ پارلیمنٹ الیکشن آنے والے ہیں، یہ جو 3 اسٹیٹس انڈین الائنس کے ہاتھ سے گئی ہے، آنے والے پارلیمنٹ میں کس طریقے سے انڈین الائنس کم بیک کرے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کو، کہ اگر اپنے اس ملک کو ہمیں بچانا ہے، اگر ہمیں اس ملک کو جو ہے سپر پاور بنانا ہے، تو ضرورت ہے کہ یہ جو کمیونل ہارمونی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور ایشوز پہ بات ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، تب جا کے یہ ملک آگے جائے گا۔ اور جتنے بھی ہمارے نیبرز ہیں ان سب سے جو ہے بات چیت ہونی چاہیے، پیار محبت سے اگر ہم رہیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ریجن کا بہت اچھا فیوچر ہے۔ روبرٹ صاحب، اگر ہم دیکھیں گے انڈین الائنس کی طرح ہی یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر میں بھی ایک الائنس ہے جسے ہم پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کہتے ہیں، کیا وہاں پہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ لوگوں میں خدشہ ہے کہ وہاں پہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں تک پی ڈی پی کا تعلق ہے، پی ڈی پی نے ڈے 1 سے گھر ہر ایک لیڈر کے صاحبان کے گھر ہماری پارٹی پریزیڈنٹ میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ گئی، اور جو ہے یہاں گفتار الائنس بنی۔ اس کے ریزن ہے کہ یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی آپشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹ ہونا،
तब जाके हम जो हमारे आईनी हुकूक हमसे छीने गए, जिस तरह 370-35A की हम बात करें, या डाउनग्रेड स्टेट को करना, यूटी में बदलना, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादतियाँ उरूज पे है। अगर इन सब का खात्मा हम सब चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम मुत्तहिद हो, एक जगह बैठकर इस चीज़ का फैसला करें कि हमारे जो भी हुकूक है, अगर उन सब को वापस लाने के लिए इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सब एक हो जाए। अगर हम बात करेंगे जहाँ पे वुमेन कश्मीर में अभी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, रीज़न क्या है, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, बीजेपी हर सतह पे यहाँ जो है फेल हो गई है। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे आप पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें, चाहे आप यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो मुलाजिम साहिबान हैं, उनको कैसे अजियतें दी जा रही है, उनको एक एक्सक्यूज बनाकर दूसरा कोई बहाना पकड़कर नौकरियों से निकाला जा रहा है। हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं, उनको कैसे दबाया जा रहा है। हक की बात कहीं पर जो है, जहाँ भी कोई हक की बात करता है उसको दबाने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स, उनको कैसे दबाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जोर ज़बरदस्ती की जो पॉलिसी है, इन द लॉन्ग रन ये चलने वाली नहीं है। हमारा ये डे वन से हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो ये मसला है, ये एक पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर, इसको पॉलिटिकली हल होना चाहिए। हमने हमेशा गोली की, ग्रेनेड की, टैंक की मुखालफत की है। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामिया को बैन करके, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जेलों में भर के इनसे कोई चीज़ हासिल नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई है, एक सोच की लड़ाई है, फिक्र की लड़ाई है। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है बातचीत के ज़रिए जो है आइडियाज़ की जो है लड़ाई है, ये ख़त्म हो सकती है जब आप टेबल पर बैठकर सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल पर लाकर जो है उनसे बात करते हैं। इस न सिर्फ ये खून खराबा यहाँ रुक सकता है, बल्कि यहाँ खुशहाली आ सकती है। और जो लोग बहुत दूर चले गए हैं फेडरेशन से, तो उसके बगैर मैं ये समझता हूँ, पीडीपी ये समझती है कि कोई ऑप्शन नहीं है। उसके साथ साथ यही वजह है कि 5 अगस्त 2019 से पहले एक जो हमला हुआ 5 अगस्त 2019 को, जो जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ, जिसपे हमारे हुकूक छीने गए जो हमें आईन ने दिए थे, चाहे वो 370 की बात करें हम, 35A की बात करें हम, या डाउनग्रेड स्टेट को उसकी बात करते हैं हम। मैं ये समझता हूँ उससे पहले पीडीपी पे हमला हुआ, पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की गई, पीडीपी के लीडर साहिबान को जेलों में भर दिया गया, हमारी मैडम को, पार्टी प्रेसिडेंट को अजियतें दी गई, उनको जो है बेइज्जत किया गया, उनको घर से निकाला गया। उसके बाद भी वो न थकी न झुकी। उसने हमेशा, जब भी चाहे प्रेस फ्रेटर्निटी पे, हमारे जर्नलिस्ट पे कभी भी वार हुआ, उन पे जो है मुसीबतें आई, तो उनकी आवाज़ जो है उनके साथ शाना बशाना खड़ी वो रही। चाहे मुलाजमों के साथ ज्यादतियाँ हुई, उनके साथ वो शाना बशाना खड़ी रही। चाहे हमारी ज़मीरें हमसे छीनी गई, उस पे भी वो शाना बशाना खड़ी रही। या जिस तरह हमारे घरों को मिसमार किया गया, उस पे भी वो शाना बशाना खड़ी रही। हम ये समझते हैं कि बहुत सारे मीर जाफर, मीर सादिक आज भी है, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद जो रोल अदा किया है, वो वाकई दर्द उससे महसूस होता है कि किस तरह उन्होंने, जब हमारे साथ ये हो रहा था, पूरी दुनिया को बावर कराया। जो दुनिया के एम्बेसडर्स यहाँ आए सिर्फ ये कहने के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो वो कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है, लोगों की मर्जी से हो रहा है, जबकि लोग बंद थे, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही थी, अजियतें हो रही थी। उसके बाद आज भी कुछ लोग हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर का जो है उसको जो है दाव पे लगा रहे हैं, हमारी जमीनों का सौदा करने जा रहे हैं, हमारे एहसासात, जज्बात, हुकूक का सौदा करने जा रहे हैं। जरूरत है लोगों को कि लोग अच्छे और बुरे की तमीज करें। लोग उन लोगों, हमने चीफ मिनिस्टर्स को भी देखा है, प्राइम मिनिस्टर्स को भी देखा है, हमें एक लीडर की जरूरत है। हम ये समझते हैं पीडीपी कि अगर कोई लीडर है जो लोगों की बात कर रही है, जो वाकई हमारे हक की बात कर रही है, जो मसले कश्मीर को हल करने की बात कर रही है, जो एंगेजमेंट्स की बात कर रही है, रेजोल्यूशंस की बात कर रही है, वो मैडम महबूबा मुफ्ती है।
तो इंशाअल्लाह ताला हम पुरुम्मीद है कि जो हमसे छीना गया है वो दिल्ली को वापस देना होगा, क्योंकि वो हमारे आईन में, हमें वो आईन ने दिया था। आपने जो ये बातें कही, लेकिन इसके बरक्स जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वो कहते हैं कहीं ना कहीं पीडीपी ने ही यहाँ पे बीजेपी को एक्सेस दी है। देखिए, तवारीख गवाह है, और ये जो 3 साल जो हमारे उनके साथ अलायंस रही वो एक सुनहरी दौर था। तवारीख दान इस चीज को जरूर उन्होंने लिखा होगा कि आपने देखा कि हमने 12,500 FIR विड्रॉ करवाए, हमने हमने वन साइडेड सीज फायर करवाया, हमने बार बार ये कहा कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस था उसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मसले कश्मीर पे पेशरफ्त होनी चाहिए, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, यहाँ की अलहदगी पसंदों से बात होनी चाहिए, रोड्स ओपन होने चाहिए, तिजारत होनी चाहिए, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स वापस आने चाहिए। यही वजह है कि 5 अगस्त 2019 जो हुआ, जो हमला जम्मू कश्मीर के लोगों पे हुआ, उससे पहले इनके लिए मजबूरी बनी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे हमला किया गया, हमें बिस्मार करने की कोशिश की गई, हमें बेदर्द, आप देखिए जो बेदर्द हाकिम भी नहीं करते, जो जुल्म, जो बर्बरियत पीडीपी के लीडर साहिबान पे हुई, पीडीपी के वर्कर्स पे हुई, पीडीपी की पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ हुई, किस तरह बेघर कर दिया गया, किस तरह उसके साथ अजियतें की गई, किस तरह उसको बेइज्जत किया गया, क्योंकि हम इनके लिए ये मजबूरी इसलिए बनी क्योंकि इनको मालूम था कि ये सब कुछ नहीं होगा अगर पीडीपी मजबूत होगी, अगर ये लीडरशिप मजबूत होगी, ये इकदाम यहां मुमकिन नहीं था। ये तब जाके हुआ जब पीडीपी को कमजोर किया गया। उसके बावजूद भी जब सारे लीडर घर में बेबस थे, लाचार थे, एक आवाज अगर आपने देखी, चाहे वो दाएं देखी, बाएं देखी, साउथ में देखी, नॉर्थ में देखी या सेंट्रल में देखी, चाहे बेबस लोगों के लिए थी, प्रेस वालों के लिए थी, मुलाजिमों के लिए थी, हमारे जो जमींदार लोग हैं, जो भी कोई कम्युनिटी में है, उसके लिए अगर कोई आवाज उठी वो पीडीपी की आवाज थी, मैडम महबूबा मुफ्ती की आवाज थी। उसकी गवाह, और उसके गवाह आप भी है, हम भी है, लोग भी है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम झुकेंगे नहीं। वो मौत जो है बदतरीन मौत होती है जो इंसान को गुलाम बनाती है। ये वक्त भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम मुत्तहिद होंगे, अगर हम रजिस्ट करेंगे आईनी तौर, पॉलिटिकली, इंशाअल्लाह ताला हम जरूर कामयाब होंगे। जितने भी हमारे मुतालबे हैं वो जायज मुतालबे हैं, वो दिल्ली सरकार को मानने ही होंगे। 2019 के बाद गवर्नमेंट दावा करती है सब कुछ बदल चुका है। क्या आपको लग रहा है अभी भी बात करने की जरूरत है कि पाकिस्तान हुर्रियत अभी भी प्लेयर है, स्टेक होल्डर्स है अभी? देखिए, आप मुझे बताइए, अगर सारा कुछ यहां ठीक है तो आपने हाल ही में देखा कि पिछले 2 महीने में कितने एनकाउंटर्स हुए, चाहे वो रजौरी पुंछ में हुए, चाहे कोकरनाग में हुए। अगर यहां सारा कुछ ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर यहां सारा कुछ ठीक है, रोज कभी जर्नलिस्ट को तंग करना, कभी मुलाजिमों को निकालना, कभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है बैन करना, मुझे बताइए, अगर ये सारा कुछ ठीक है फिर तो यहां 8 लाख या 10 लाख हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको तो बारकों में होना चाहिए था। यहां तो आप जब नेशनल हाईवे पे चलते हैं, आप तो एम्बुलेंस को रोकते हैं, आप तो अपने हमारे स्कूल बच्चों को, उनकी बसेस को रोक कर उनको साइड करते हैं। ये कहां का इंसाफ है? अगर यहां सारा कुछ ठीक है, अगर डेवलपमेंट हुई है, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देता हूं कि 2018 में कितना खर्चा हुआ, 2019 में ये तो माइनस में जा रहा है। आप मुझे बताइए 5 अगस्त 2019 के बाद कितनी जॉब्स यहां मिली? आप एसआई की बात करें, जो पुलिस में पोस्ट निकले, उसको भी जो है स्कैम बना। आप फायर सर्विस की बात करें, उसको भी स्कैम बना। आप जेई की पोस्ट की बात करें, उसको भी स्कैम बना। आप मुझे बताइए, इन्होंने दिया क्या? कश्मीरी लोग बच्चों को या जम्मू के बच्चों को नौकरियां नहीं दी, नौकरियों को देने के बजाय नौकरियां ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, यहां के रिसोर्सेज को लूटना। आप देखिए, यहां से पावर लेना, हम पावर प्रोड्यूस करने वालों में से हैं। हम यहां से 2 रुपया पर यूनिट नॉर्थ ग्रिड को देते हैं, वो हमें वहां से 14 रुपया देते हैं।
ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप देखिए स्मार्ट मीटर्स लगा के क्या आप साबित करना चाहते हो? क्या आप डंडे से, बंदूक से जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि दुनिया में कहीं यह मिसाल नहीं मिलती है कि डंडे से या बंदूक से मसले हल होते हैं। मसले अगर हल होते हैं वो बातचीत के जरिए होते हैं, दिल जीतने से होते हैं। हमारा यह मानना है कि कश्मीरियों के दिल जीतने की जरूरत है, तब जाके सारे मसले यहाँ हल हो सकते हैं। गवर्नमेंट का दावा ये भी है कि G20 समिट हुआ यहाँ पे, वो सक्सेसफुल हुआ, उससे टूरिज्म को काफी बूस्ट मिला है। क्या वाकई वो सक्सेसफुल? देखिए, अगर ये सारी चीजें यहाँ के हालात को ठीक करने में जो है मुयस्सर रहे हैं तो फिर रिजल्ट तो सबके सामने है। आप मुझे बताइए, आप पकड़ दकड़ कितनी है? आप मुझे बताइए, यहां हमारी सिक्योरिटी फोर्स, ये तो सबसे बड़ा दुनिया का प्रिजन है जम्मू कश्मीर। आप मुझे बताइए, यहां रोज 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद एनकाउंटर्स नहीं होते हैं। यहां पॉलिटिकल लीडर जितने भी हैं उनको 10-10, 15-15 सिक्योरिटी के पुलिस प्रोटेक्टेड है, सारे प्रोटेक्टेड है, उनको PSOs है। क्या आपको यहां देखते हैं कि कोई भी, चाहे यहां का VIP हो, चाहे यहां का पॉलिटिकल लीडर हो, उसके साथ उसके कितने मुहाफिज होते हैं? अगर सारा कुछ ठीक है तो ये क्यों? हम ये मानते हैं कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी, इससे जो है इन द लॉन्ग रन ये बर्बादी की तरफ ये चीजें ले रहे हैं कि जब आप डंडे की बुनियाद पे सारा कुछ ठीक करना चाहते हैं। बैटल ऑफ आइडियाज जो है बातचीत के जरिए हल होते हैं। बैटल ऑफ आइडियाज जो है बैठने से, लोगों के जो एस्पिरेशंस है उनको इज्जत करने से, उनको जो है एड्रेस करने से मसले हल होते हैं। ये इस चीज को मानते हैं। बिजली कटलमेंट्स आपने देखे हैं, आपकी हुकूमत में भी ये कटलमेंट्स हुआ करते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत का दावा था हम NHPC से प्रोजेक्ट्स वापस लेंगे। 3 साल आपने हुकूमत की, लेकिन आप उस दावे से, हमारी पूरी कोशिश रही कि ये हमारा जम्मू कश्मीर का हक है कि हमारे पावर प्रोजेक्ट हमें वापस मिलने चाहिए। उसके साथ साथ जब हम बिजली की बात करते हैं, आपको याद होना चाहिए हमने यहाँ जो गैस टरबाइन है उसको चलाकर बिल्कुल 24 घंटे यहाँ हम रमजान में या बाकी महीनों में बिजलियां दी। वो तो गवाह है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमने पूरी कोशिश की। जो आज हो रहा है, चाहे वो हम बिजली की बात करते हैं, चाहे हम बाकी चीजों की बात करते हैं, चाहे देखो किस तरह हमारे बिजनेस फ्रेटर्निटी को यहाँ दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको जो है किस तरह सताया जा रहा है, मुलाजमों को, प्रेस को, यहाँ जितने भी एसोसिएशंस है, ये तो सबके सामने आया है। मेरे सवाल करने का मतलब ये है, जो आपने इनिशिएटिव लिया था, जो NHPC से हम प्रोजेक्ट्स वापस लेंगे, कहां पे आपकी गवर्नमेंट को कोताही हुई, वो वापस नहीं मिले? नहीं, कोताही नहीं हुई, हमारी पूरी कोशिश थी, उस पे बात हो रही थी। जब बीजेपी को लगा कि हमारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, हम अपने जो इनके हिडन एजेंडाज है, वो जो उनके अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, वही वजह थी कि उन्होंने जो है अपना जो बहुमत थे, उनकी जो सपोर्ट थी, उन्होंने गवर्नमेंट से वो वापस लेकर गवर्नमेंट को तोड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था कि गवर्नमेंट में उनको जो है हमने लगाम कसी है, उनके जो जितने भी हिडन एजेंडाज थे वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। वही रीजन है कि उन्होंने गवर्नमेंट को तोड़ा। शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू।